So basically in this lecture I'll try to cover as much as is possible regarding the basic of friction, as well as try to solve a numerical. So the other day what we were discussing was that this is the dining table in your living room. So what I had told you was that very gradually, if you start to push this table, you will feel a resistance. That resistance, or call it friction. So because you are pushing on this side, this resistance or the friction is pointing towards this side. Are we clear? This is the external force that you are applying. This is the external force you are applying. So you have to do this very gradually. And what you will start feeling is, as you are increasing the force, what you will see is that the resistance keeps growing. And then it reaches a certain point. And then at the moment when the table starts moving, when the motion is there, suddenly you will see that you don't have to apply so much force. Of course, there would be some force which would be opposing your force, your external force. I'm calling this the external force. Basically, this F external is force applied by Avantika. So this is a force. This phase of the force is till there is no motion. And suddenly when the motion starts, the opposing force decreases. This is Avantika, are we clear till here? Yes. So this is what is called the static friction. Static. This is when there is no motion. And this static friction changes as the external force changes. So you will see that in this region of, let me name this AB. So in this region AB, this static friction will be equal to the external applied force. Are we clear till here? Because it will keep adjusting. It will keep adjusting. So when you are reading my chapter, you would have read this word, self-adjusting. This is the meaning of self-adjusting. Now it will reach its maximum. And then suddenly it will drop. The friction will remain. But this will be a constant friction now. And this is called kinetic friction. So one thing, are we clear till here? Yes. And what you need to understand is, the biggest difference between these two friction is that this friction is always equal to whatever force that you are applying. But this Fk is a constant, and it depends upon the nature of the body and the normal reaction. So we'll go into detail about this, but for the time being, I will just write this formula. So if I replace this table with a point object, the weight is pointing downwards, the reaction is pointing upward, the reaction is equal to W. The kinetic friction will be equal to mu k. This mu k is the property of the two materials. The two materials means the table and the surface. The surface and the table depends upon the nature of material between the table and the surface. Mr. One thing, are we clear till here? Yeah. So just take an example. You can have various kind of tables and you can have various type of surfaces. So for example, I can have a glass table, which let us assume is moving on marble, or I can have a wooden table, which is say moving on concrete. As you can see, this would be having less friction, but this would be having huge amount of friction. Am I making sense? So that is why it depends upon the nature of the material of the two bodies. Are we clear till here? Yes. One thing that you need to understand about this R and this W, which gets very confusing, is when you have a horizontal surface, this weight will be downward, the R would be upward. So therefore, the kinetic friction would be mu k into R. But what will happen if you have an inclined plane? Now, a very interesting thing will happen. This will be W. This is theta. This would be, the normal reaction is always perpendicular to the surface. So in this case, a very smart thing which will happen is,
then you can break this W into two components. This is W cos theta and this is W sin theta, and R is equal to W cos theta. Therefore the kinetic friction is equal to mu k into R. In this case the R was equal to W, but in this case the R, this R would be equal to W cos theta. Am I making sense or not? Yes. What I'm trying to tell you guys is that on a horizontal surface, your Fk is equal to mu k W. But when you take a inclined plane, your Fk would be equal to mu q W cos theta. Am I making sense or not? Yes. Or what you can imagine is that this is a special case where theta is equal to 0 degree. Am I making sense? So that is why Fk dash is equal to mu k W cos 0, which is again equal to mu q W. Am I making sense? Yes. R और W cos theta इक्वल रहेगा, क्योंकि इस केस में जो R है, because what you need to understand is that in this case, इसको लॉजिकली समझिए. The problem is that in this case, अगर आप ये वाला केस ले रहे हैं, what will happen is that there is no motion in the vertical direction. Because there is no motion in the vertical direction, तो ये जो R है इसको ये W cos theta के इक्वल होना ही पड़ेगा. You can note down whatever I have written. So once we have understood till here, then we understand that both of these surfaces are surfaces which have friction. Are we okay till here? Yes. Now, see, what you need to understand is that in horizontal surface, the friction comes only into play if there is some external force. भाई अगर कोई, let us assume you are pushing it from this side, only then there will be a opposing friction from this side. Have you understood what I've said? जब तक आप external force लगाओगे नहीं तो friction तो आएगी नहीं. नहीं समझ में आया? समझा. So that is why if the body is at rest, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. I'll give you a very simple example. So, Mr. Vantika, you are, let us say, I'll give you a very simple example. So whole day you are sitting on the sofa and watching, this is you lying on the sofa. So all the day you are watching TV or scrolling through Instagram reels, Mr. Vantika, Instagram reels. Yeah? No, because you are doing nothing. So do you think there will be a friction? No, there will be no friction. When the friction will come? The friction will only come when you sit on the table and you try to read a book. Have you understood what I have said? भाई आप काम करोगे तभी तो फ्रिक्शन आएगी. अगर आप काम कर ही नहीं रहे तो फ्रिक्शन किस चीज की? फिर तो चलते रहो जैसे भी चल रहा है. नहीं समझ में आया? Yes, समझा. आप स्टडी कर रहे हैं या लेट अस अज्यूम कोई भी अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या आप पेंट कर रहे हैं या यू आर ट्राइंग टू रीड अ बुक. अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो फ्रिक्शन आएगी. तो ना तो आपका रीड अ बुक करने का दिल करेगा, ना पेंट करने का दिल करेगा, ना स्टडी करने का दिल करेगा. बिकॉज रेजिस्टेंस तभी आती है जब आप रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन will only come into play if you are doing some work. Mr. Vantika, are we clear? Yes. भाई जो कुछ नहीं कर रहा है, आराम से बैठा टीवी देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, फिर तो फ्रिक्शन आएगी नहीं. फिर तो आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे हो. ये जो है तभी तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज आप तो बैठे हो. मिस्टर Vantika, नहीं डाउट? No. अब अगर ये इंक्लाइंड सरफेस आप लेते हो, देन व्हाट यू विल सी इज ये W नीचे है, ये W के दो कंपोनेंट है, एक W cos थीटा है, एक W sin थीटा है. बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये वाला जो R है उसने इस W cos थीटा को बैलेंस कर लिया. आर वी ओके टिल हियर? Yes. अब अगर यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जो W sin थीटा है यार, ये तो बैलेंस नहीं है, इसको तो कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा, तो ये तो ऐसा ही पड़ा हुआ W sin थीटा. अब ये W sin थीटा ट्राई करेगा कि ये जो बॉडी है ये नीचे मूव करे. मिस्टर Vantika, आर वी क्लियर टिल हियर? Yes. तो इसको अपोज करने के लिए देयर विल बी सम फ्रिक्शन व्हिच वुड बी ऑन दिस साइड. आर वी क्लियर?
Yes. Now there will be a interplay between this W sin theta and friction. Are we clear till here? Yes. And now we have a very interesting interplay. 1 second. Yeah. And now we have a very interesting interplay. I'll make some space to show you how this will change. So you have W sin theta, which is pushing the body down the slope, and there is a friction, source of friction, which is trying to resist the motion. This is trying to resist the motion, try to resist the motion. Are we clear till here? So one thing, are we clear till here? Now, as you start increasing, अब आपके पास जो वेरिएबल है वो W है और वो साइन थीटा है. यू कैन हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट इतना ज्यादा है, यू कैन हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट इतना ज्यादा है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको बैलेंस नहीं कर सकती. इसलिए ये साइन थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं करता. आपने अगर प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखा, वो जो ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट हैज सो मच वेट, वो नीचे स्लाइड कर जाएगा. नहीं समझ में आया भाई? सभी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यू कैन हैव अ केस वे डब्ल्यू छोटा है, डब्ल्यू जो है वो छोटा है, बट आप जो थीटा है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. एज यू आर इंक्रीजिंग द थीटा, साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है. तो एक सर्टन वैल्यू आ जाती है जहां डब्ल्यू साइन थीटा इतना बड़ा हो जाता है कि एफ मैक्स को क्रॉस कर जाता है, तो फिर से ये नीचे स्लाइड कर जाता है. नहीं समझ में आ रहा? All I'm trying to tell you is that there is an interesting interplay between three things: the theta, the W and the friction. ये तीनों का एक बड़ा प्यारा सा इंटरप्ले चल रहा है, which is defined by W, the relation between W sin theta and F. You can have a very small W, you can have a very small angle of theta, but you can have a very lubricated surface जिसकी वजह से F इतना छोटा है कि आप थोड़ा सा भी थीटा को इंक्रीज करते हो तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस? यू कैन हैव अ इंस्टेंस वेयर W इतना बड़ा है, साइन थीटा आपने इतना बड़ा कर दिया, बट आपने F इतना ज्यादा बड़ा किया हुआ है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर भी नीचे स्लाइड नहीं करेगा. So for example, you have all these 60 feet containers, huge W, and you have these mountain slopes, and these 60 feet containers are taking a turn. They are taking a turn on this mountain slope. Now again, you have to manage the interplay. You have to manage the interplay between the W, the theta, the friction. वैसे भी समझ आ रहा है? So all these things are very interesting things where you'll have to manage the interplay between these things. Are we making sense? तो तीन चीजें चल रही हैं आपकी: वेट, फ्रिक्शन, इंक्लिनेशन. और ये जो तीन चीजों का जो इंटरप्ले है ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को लेके आएगा. सो फॉर एग्जांपल, यू विल हैव अ केस वेयर दिस, ऑफ कोर्स जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो विल हैव ऑल काइंड ऑफ केसेस. ये जो केस है इसको फिर से स्टडी करेंगे. यू विल हैव अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट है हु इज टेकिंग अ शार्प टर्न अराउंड हु इज टेकिंग अ टर्न अराउंड अ रोड. सो विल हैव टू स्टडी दैट आल्सो. बट इन जो भी केस, कैसा भी केस बनेगा उसमें हमेशा एक इंटरप्ले रहेगा between these three forces. Are we clear till here? So this is what we were discussing, that now we come to the what we were discussing 10 minutes back, that static friction is dependent upon the external force. It is equal to the external force. जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करेंगे वो स्टैटिक फोर्स इंक्रीज करती रहेगी. बट ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, it depends upon the normal reaction. And what I have told you in the last 10-15 minutes is कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है देन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू W, बट अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो R जो है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू W cos थीटा. R
वुड बी इक्वल टू W cos थीटा। ये जो W sin थीटा है इसका इंटरेक्शन होगा F से। तो आपको बेसिकली जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, बेसिकली आपको हमेशा ये एक दिमाग में, आपके दिमाग मतलब बैक ऑफ द माइंड यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो हमेशा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेना है, नहीं समझना। एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू म्यू के इनटू आर। सो यू विल ऑलवेज हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन multiplied by the r, which in this case would be W cos theta. So this is the equation which is written. अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग है, अगर स्लाइडिंग नहीं है तो इसका जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये एफ के नहीं होगा, ये उस केस में एफ एस होगा स्टैटिक, और ये जो एफ एस है दिस विल बी इक्वल टू W sin थीटा। तो अगर मोशन में ऑब्जेक्ट आ चुका है तब एफ के जो है वो म्यू आर के इक्वल है, म्यू के आर के इक्वल है, और जो आर है वो W cos थीटा इंटू म्यू के है। तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। बट अगर ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है और वो स्लाइड नहीं हो रहा, तब जो एफ एस है, क्योंकि तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द W sin थीटा। वैसे भी समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो इंटरप्ले है इसको समझना बड़ा जरूरी है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में, स्टैटिक है, ऑलरेडी उसने मूव करना शुरू कर दिया है या नहीं मूव किया। आर वी क्लियर टिल हियर? So after all this discussion that we have, that the motion of the body on an inclined plane, is decided by the weight, the angle theta, as well as the force of friction. Miss Avantika, are we clear? Yeah. तो कुछ आईआईटी लेवल की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर हमें थोड़ा सा उसको केस वाइज स्टडी करना पड़ता है कि मोशन में आएगी नहीं आएगी, लेट अस अज्यूम मोशन में नहीं आएगी, या कितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन तक जा सकता है, तब जाके वो जो बॉडी है वो मोशन में आएगा। सी द थिंग इज, थिंग्स आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप एक बुक ले लीजिए, जस्ट पुट अ कॉइन ओवर हियर, सो दिस इज योर बुक। हैव यू अंडरस्टूड द पिक्चर? तो ये आपकी बुक है, ये पेजेस है। हैव यू अंडरस्टूड? जस्ट पुट अ कॉइन ओवर देयर, ऐसा एक आपने कॉइन रख दिया। Now you can do a simple experiment. Where you are trying to increase the angle of the theta. काफी देर तक कॉइन हिलेगा नहीं, बट यू नो बाय द टाइम जो बुक है वो थोड़ा इस लेवल तक आएगी, एंड देन यू विल सी द कॉइन विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. So this is all I'm trying to tell you. Of course, you can make it as complicated as possible. आप कॉइन की बजाय यहाँ पर बॉटल लग दीजिए, आप कॉइन की बजाय यहाँ बॉटल लग लीजिए, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी आईआईटी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेयर व्हाट यू वांट इज की बॉटल किस पॉइंट में जाके टॉपल करेगी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? क्योंकि भाई एक चीज तो हो सकती है स्लाइडिंग, कि बॉटल स्लाइड करनी चाहिए, बट उसको आईआईटी लेवल का आपने बनाना तो आप बोलो कि यार बॉटल मेरी टॉपल करनी चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दैट थिंग्स? Yeah. बट माय ओवरऑल पॉइंट इज दैट अगर आपको बेसिक फंडे नहीं आ रहे, ये फंडे नहीं आ रहे, और टीचर समझा रहा है आपको बॉटल कैसे टॉपल करेगी इंक्लाइंड प्लेन में, तो इट्स नॉनसेंस। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ आफ्टर ऑल दिस ज्ञान ऑफ I think more than 20 minutes, let's come back to the problem. So have you understood this part of the friction? Now Yeah. that is what I'm saying कि you'll have to अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगा के, because now you won't fall to sleep, अब थोड़ा सा टाइम लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, I'll show you the pages that you will have to read. थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, you'll have to find because you'll have to give the exam। तो आपके एग्जाम में कुछ जो टॉपिक्स हैं फ्रिक्शन के वो बड़े फेवरेट है इनके टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। दे विल आस्क यू द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, सो यू कैन गिव द two causes of friction. One cause of friction, which was a classical theory, was that due to these projections and depression, you can read through it, I won't spend much time on it. This was the classical view कि लॉकिंग हो जाती है। सो टेबल की जो सरफेस है और जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच में लॉकिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। बट देन देयर इज अ न्यू द मॉडर्न थ्योरी सेज कि भाई लॉकिंग नहीं होती, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि दे डोंट वांट टू लीव ईच अदर, सो देयर इज अ एडहेसिव फोर्स व्हिच develops between the two surfaces. Are we clear? Yeah. You can go through all this in your own free time, and this is what we discussed here. I'll tell you one one question which is usually asked. So this is what we were discussing about the limiting friction. Then we discussed about the
Okay. So they might ask you a question like why friction is called a self-adjusting force. So you'll have to read through this and understand what is written here. Then they'll give you the laws of kinetic friction. Laws of kinetic friction. Friction is independent of the contact area. Kinetic friction is almost constant for a pair of two places. Kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. You'll have to go through this. This is very important from a exam point of view. You'll have to remember this graph. Mr. Vantik, are you with me till here? Yeah. Then there is something called an angle of friction. The angle of friction is the angle between the normal reaction and the static friction. So again, from a exam point of view, this is a important topic. So you can go through this, not very difficult. Then types of kinetic friction. The kinetic friction can be sliding friction, can be rolling friction. Then they'll give you some gyan on rolling and sliding friction. And now these are the cases that we are discussing. These are the cases which are given in your book that we are discussing. But I don't want to, make the things in terms of sine alpha, cos theta, and all this alphabetical nonsense, because otherwise things become very complicated. And that is why I want to take hardcore numbers so that we can discuss. And that is why I directly jumped on to this numerical. Once we have done this numerical, then you can go through the alpha, beta, theta. Then it will make far more sense. Mr. Vantika, are you clear till here, whatever we have discussed? Yeah. So basically what I'm trying to tell you is that is why I started with this numerical, because using this numerical, we'll try to understand whatever alpha, beta, theta is written. And in the numerical, after all this gyan which has been showered on you, what we have come to the conclusion is that this is a kinetic friction. This is a kinetic friction. Because the object is sliding, there would be an acceleration which will be down the slide. There will be a kinetic friction which will be opposing the force, and it will be in the opposite direction. See, what you need to remember is friction always opposes relative motion between the objects. Are we clear till here? भाई अपोज करेगा, हमेशा अपोज करेगा. अगर ये सरफेस है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो इस साइड मूव करेगी. और अगर ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है तो आपकी जो फ्रिक्शन है वो इस साइड पुश करेगी. तो समझते आर वी क्लियर टिल हियर? Yeah. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात आपको हमेशा ये याद रखनी है कि यार काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज गिवन बाय म्यू के आर. अब ये जो आर है हॉरिजॉन्टल में, तो जो आर है दैट इज बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू, बट इंक्लाइंड प्लेन में जो आर है दैट इज इक्वल, दैट इज बैलेंस्ड बाय द डब्ल्यू cos theta component. Are we clear till here? Yeah. थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. अब ऑब्जेक्ट, इस केस में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है. क्या ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है? एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी लुक एट द न्यूमेरिकल, a body of mass is sliding on a surface inclined at an angle theta with the horizontal. Calculate the coefficient of friction. You don't see no external force. Miss Avantika, are we clear? कोई external force बेटा नहीं लग रही. अगर एक्सटर्नल फोर्स होती तो वो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लगती. आर वी क्लियर मिस अवंतिका? Yeah. ये समझना जरूरी है. आई विल शो यू अ न्यूमेरिकल जहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी. ये देखिए, ये देखिए जहां लिखा है ना व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स, तो यहां पर ये देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगी है. बट हमारे केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है. शिवांग तुझे डाउट है तो मेरे से पूछ, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगी है. आर वी क्लियर? एंड अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपका जो सिग्मा एफ है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन देने वाला है. एंड वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो भी आपकी फोर्सेज हैं वो हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे लिखनी है. ये राइट साइड को कभी भी आपने टच नहीं करना. ये इस केस में एम ए है और सर्कुलर मोशन में ए एम वी स्क्वायर बाय आर है. वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन डेवलप इज कि हमेशा जो भी फोर्सेज हैं, बेटा शिवांग ध्यान से सुन लो, जो भी फोर्सेज हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखनी है. राइट साइड पे सिर्फ एम ए लिख सकते हो या सर्कुलर मोशन में एम वी स्क्वायर बाय आर. राइट साइड पे कोई भी फोर्स नहीं लिखनी. आर वी ओके टिल हियर मिस अवंतिका? अगर एक्सेलरेशन जीरो ही, अगर एक्सेलरेशन जीरो हुई तो ये वाली जो राइट साइड है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी. यू डोंट हैव टू राइट एनी फोर्स ऑन द राइट साइड. वी विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे. बट राइट साइड में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कोई भी फोर्स जो है वो राइट साइड में नहीं लिखी जाएगी. आर वी क्लियर? आपने ये फोर्सेस लिखी F1 F2 माइनस F3 इज इक्वल टू एम ए. अब ये जो तीन फोर्सेस हैं अगर ये एक दूसरे को बैलेंस कर गई, बेटा शिवांग यहीं पर हो,
अगर ये सारी जो फोर्सेज है बेटा, एक बात बताओ, ये तीनों फोर्सेज का जो वेक्टर सम है, जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ गया, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाएगा? हाँ जी, जीरो। शाबाश, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर F1 F2 F3 जो है वो लेट अस अज्यूम 10 न्यूटन करके उसका रिजल्ट आ जाता बेटा, तो एक्सेलरेशन डिपेंडिंग अपॉन द मास, लेट अस अज्यूम मास जो है वो 1 kg, तो एक्सेलरेशन का आपका आंसर आ जाएगा। आपने कभी भी जो फोर्सेज हैं वो राइट साइड पे नहीं लिखनी। मिस अवंतिका, आर वी क्लियर? Yeah. यू माइट, बोथ ऑफ यू गाइज वुड बी वंडरिंग कि सर इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि आपने नहीं लिखनी, बिकॉज जब 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 कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, कॉम्प्लिकेटेड केस क्या होगा हमारे लिए फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड व्यू वुड बी, टॉपिक वुड बी, दिस वुड बी अ कार which is moving on a circular track which is inclined at an angle theta and there is a force of friction. So for us this would be the most complicated case हमारे लिए। इस केस में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिग्मा एफ है वो एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। आई एम सॉरी, अब ये एम वी स्क्वायर आर का मतलब क्या है, वो जब सर्कुलर मोशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट उस केस में भी जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती हैं, राइट हैंड साइड को कभी टच नहीं किया जाता। राइट हैंड साइड में या तो एम ए लिखा रहता है या एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा रहता है। अगर नेट फोर्स का रिजल्टेड फोर्स जीरो है तो एम ए ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे बनती है? समझ रहा। आई एम स्पेंडिंग मोर देन टाइम विच इज रिक्वायर्ड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इसमें ना कंफ्यूजन बहुत है अवंतिका। मार्केट में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से कभी पूछना, ये टॉपिक समझ नहीं आता इतनी जल्दी, बहुत कंफ्यूजन है। यू कैन ट्राई टू आस्क 10 फ्रेंड्स ऑफ योर्स, ये टॉपिक ना ठीक है। हाँ, it is confusing a little. कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है। तो फिर से फोर्स डायग्राम पूरा बनाया जाए। तो ये मेरा W cos 30, ये मेरा W sin 30, जो एफ के है वो तो W cos 30 को बैलेंस कर देगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको लिखने का एक स्टाइल ऐसा भी है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई एम सॉरी यार, मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, यहां पर रिएक्शन था ये। तो अगर मुझे जैसे सिग्मा सिग्मा एफ जो है वो एम वे, ये एम ए, ये मेरी मदर इक्वेशन है। अभी मदर इक्वेशन को अगर मैं वाई एक्सिस में लिखता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर माइनस डब्ल्यू कॉस 30। अब वर्टिकल डायरेक्शन में भाई समझो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, और इसलिए जो आर है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू कॉस 30। भाई लॉजिक पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा अवंतिका जी? आ रहा है। भाई से भी कोई डाउट है? और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में तो मोशन, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, मोशन हो रही है। आपने मुझे रिमाइंड नहीं किया, मैं खुद ही बना देता हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक्स एक्सिस में ये बाजू पॉजिटिव है, तो ये बाजू फोर्स कौन सी लग रही है, डब्ल्यू साइन थीटा। ये बाजू कौन सी फोर्स लग रही है, डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू साइन थीटा को अपोज कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रिजल्ट क्या हो रहा है, एम ए। भाई से भी नहीं समझ में आया, भाई से भी समझ नहीं आया? हाँ जी। तो इसमें अब क्योंकि मूवमेंट है तो अब कोई एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगी जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नहीं समझ में आया? वो क्या आएगी, वो आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। कैसे? डब्ल्यू जो है वो एम जी है, ये साइन थीटा है। एफ के बेटा बताओ शिवांग क्या होगा एफ के? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर कितना बेटा, आर कितना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री, शाबाश। तो एफ के किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शाबाश, आग लगा रही है आपने। द लैपटॉप इज बर्निंग बेटा। डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, एम जी। इस अवंती का कोई डाउट? Yeah. I mean, sorry, no, not doubt. एंड दैट इज वाई व्हाट मिस्टर सीबी इज सेइंग इज कि जैसे ही आप उसको एम लिखेंगे तो ये वाला एम, ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा। आप सर्कुलर मोशन करेंगे, जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो आप याद रखिए ये चीज कभी हम रिपीट करेंगे कि जो स्लोप होती है या स्पीड होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार का वेट कार टर्न कर रही है या ट्रक टर्न कर रहा है,
जो वेट जो मास है वो निकल जाता है इक्वेशन में से। डिटेल में कभी करेंगे, अभी छोड़िए। तो जी की वैल्यू मैं क्या डालूंगा 9.8, यहां मैं लिख दूंगा साइन 30। म्यू के की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है, म्यू के जो है वो 0.5 के इक्वल है, ये देखिए ये लिख दिया हुआ ना आपको 0.5। तो म्यू के आप 0.5 लिख देंगे या हाफ लिख दीजिए। जी की वैल्यू 9.8 है। ये क्वेश्चन आपको मिस अवंती का खुद से करना है। मैंने तो अब ज्ञान लिख दिया, अब आप आपको समझ भी आ रहा होगा, बट जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। cos 30 लिख दिया आपने इज इक्वल टू ए। अब ये जो ए है इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। भाई सी भी नहीं समझ में आया, समझते का भी क्लियर। तो ऐसे आप इक्वेशंस बनाओगे Yes. और ये करके आपका ये एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। ये सामने इक्वेशंस बनी हुई है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यूजिंग दिस इक्वेशन एंड यूजिंग दिस वट एवर डिस्कशन वी हैड, यूजिंग दिस डिस्कशन व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, अब आपको बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन ड्यू टू इट्स ओन वेट। कहने का मतलब भाई एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं। जो डब्ल्यू का ये वाला कंपोनेंट है, डब्ल्यू के दो कंपोनेंट है ना, डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा। ये डब्ल्यू साइन थीटा इतना बड़ा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, इसलिए जो बॉडी है वो खुद से डब्ल्यू साइन थीटा मतलब अपने वेट से ही नीचे आनी शुरू होगी। नहीं समझ में आया? ऐसा बनते क्या? समझा। सेकंड केस होगा मिसअवंतिका, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ये देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ध्यान से देखिए वो हॉरिजॉन्टल लग रही है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एफ कॉस अल्फा और ये जो एफ साइन अल्फा है, ये जो फाइन साइन अल्फा है। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये किसके साथ डील करेंगे? एम जी कॉस थीटा के साथ। तो इस केस में जो आर है वो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं वो होगा एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा के। नहीं समझ में आया? इसलिए जो म्यू के है वो म्यू के इंटू ये वाला आर, ये वाला आर। नहीं समझ में आया? समझा। फिर जो फोर्स लग रही है वो एट एन एंगल लग रही है, वो जो एंगल है वो बीटा है। ये थोड़ा सा उन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर दिए, ठीक है। एटलीस्ट यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि जो हमारी अभी डिस्कशन हुई है इसको लेके व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इसमें जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई है वो सारी की सारी आपको करनी चाहिए। जैसे वन थिंग आर वी क्लियर? Yes. ठीक है, सो लेट्स मीट ऑन मंडे नाउ। Okay, sir. ओके।